So, hi guys, I'm Aryaman. I'm from COE second year. So, first of all of you, welcome to your first session in IOSD. So, these past few weeks were hectic. ठीक है, different societies के orientations थे, कोई deadlines भरनी है, and you all had tests at I think. So, how did your tests go? With chat box में लिख दो या फिर if you want to speak, just raise your hands. How were they tests जो गए थे अभी? कोई है? सबको सदमा लग गया क्या टेस्ट के नाम से? Guys, try to be interactive. ये meet तभी successful रहेगी अगर दोनों way से input होगा. So we are getting some comments down there. Okay, okay, it's great. Some of them are really nice. Yes. If anyone wants to speak or express his feeling towards how their exam went, okay, yeah. Guys, you can unmute the person. So Priyanshu. हेलो एवरीवन. hi. टेस्ट तो सही गए, मतलब फिजिक्स को छोड़ के बाकी सारे अच्छे हुए. सबकी फिजिक्स बेकार गई है क्या? ठीक है, बढ़िया है. सो अब हम तुमको अनम्यूट करने अलाउ नहीं करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, एंड देन वील आस्क यू क्वेश्चन. सो वील प्रोसीड विद द मीट. ओके, कूल. सो डिफरेंट सोसाइटीज में लोग होंगे, ठीक है, कि हु ऑल हैव जॉइंड डिफरेंट सोसाइटी अदर देन आईओएसडी. जस्ट रेज योर हैंड वंस. बहुत सोसाइटीज हैं यहाँ पे, नॉन टेक, टेक, बोथ, राइट. तो बहुत लोगों ने करा ही है. सो द थिंग इज कि सिंस ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर्स, तो टेक सोसाइटी तो चाहिए होगी, राइट. क्योंकि मतलब यूर इंजीनियर्स, तुम्हारा बेसिक फॉर्म यहीं पर ही है. So for that, IOSD is here. Okay, so today what we're doing is we're going to be talking about a detailed plan that IOSD has prepared to show you how, you know, this new field that you have entered into, how it is like, and how we're going to help you with the same. All right. So before we start with the actual sessions, there are 2-3 things that I'd like to talk about. First, just lower your hands, everyone, right now. अभी लोअर कर दो, ठीक है. अभी क्वेश्चंस और पूछूंगा. तो फिर ऑल ऑफ यू जो भी है, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट कैंपस? नाइन 10 पीपल हैं. अच्छा, ठीक है. सो यू गाइस डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू बी लीविंग यू आउट. इक्वल अटेंशन विल आल्सो बी गिवन टू you guys. So for that, what we're doing is some second years and the president of our society, Satvik Bharadwaj, he's in the meet right now. We're going to be making a coordinator groups wherein you can clear your doubts and ask questions if you have. Okay. So main campus से मतलब ऐसा मत सोचना कि बस तुम लोग को हम लोग sideline कर देंगे. Equal attention will be given to you guys as well. So if you have any doubts, you can we'll be giving the links right now. You can talk to those seniors there. Apart from that, all of you, सबको mentor mentee groups allowed हो है ना? Is there anyone who's still not been given a mentor? Cool, no one, I hope. All right. So there's one. Okay, you guys have not been given mentor mentee groups, Saksham, Sani, and Samarth. Okay, so you can do one thing. You can just give your details on the group, and we'll see to it after the meet. Don't worry. Yeah, a lot. All those who haven't been allotted mentors. All right. The mentor mentee system that we have right now, don't think. I mean, this is a two-way street. Okay, we'll be giving you guidance. We'll be helping you throughout your journey. But what we're also to be doing is we'll be taking feedback as to how your mentors are performing. So if the group is dead, if you're not given satisfactory guidance, or if your seniors are not helpful at all, then just tell us in those weekly sessions that we'll be having, review sessions jo honge. Just talk to us about the mentors, about how your mentors are behaving, and we'll be looking into that. So it's like a two-way street. You'll be helping the mentors as well to make sure that they're giving you proper guidance, and of course guidance to Meghi. And lastly, there were many talks about having a Discord server. Okay, we've taken your requests into consideration,
And we have prepared a Discord server for IOSD NSUT, wherein there will be many channels for sharing resources and asking questions. And you can talk about IOSD specific topics, or you can talk about college as well. कि college की life कैसी है? Okay, you can ask for study help, or if you want to show a project. And lastly, if we'll be having DSA classes, okay, we'll be talking more on that later. तो DSA classes की जो भी details होंगी हम लोग वहीं पे share कर देंगे. And if the one most important thing is कि if you have a project in mind and you want someone to work with, all right, so there's also a channel for finding a collaborator there. जो Discord server की details होंगी, there's going to be one more session जिसमें you can we'll be explaining to you the in and out. So first, Sahil Chawla is here. He's the second year who made the Discord server. So we'll be taking a session on that as well. So it's just to familiarize with you with how Discord and that server works. All right, so don't worry. So now just sit back and enjoy. We're a family, IOSD family. So don't worry. We'll be introducing you to that family now. And so we have the core council right now. So they'll be introducing themselves. So, hi guys, I'm Satvik Bhardwaj and I'm the president of IST NSUT. So this presentation will be taken care of by the junior council or second year students. So sit tight and we'll have the core committee following me. So Ritvik. Hello everyone, this is Ritvik Nagpal and I am currently the vice president at IOSD. Cool. So our core committee members. Hello, this is Vatsal Garg and I am the general secretary of IOSD. Am I audible? Parneet has written you're not audible. Yes, you're audible. Okay. Audible. Okay, so I'm the general secretary and I think I'm in EC branch and in third year. So EC के regarding अगर कुछ doubts हो तो message कर सकते हो कोई भी. So Rachit. Yes, I'm Rachit Devan. I'm the chairperson of IOSD. I'm in third year and I'm also from EC branch. So you can take up doubts with me regarding data analysis, web development, as well as EC branch के कैसे निकालनी है बस, okay? Cool. So core committees, like some of the core committee members are not here in the meet due to some prior engagements. We'll be getting in touch with you. Satvik, was it audible throughout it? Yeah. Perfectly audible. Okay. So we have a team of 13 people, 13 third years, and the second year team is called the junior council, and they'll be taking over the presentation for now. So Aryaman and Dhruv. Are there any core committee members left in this meeting? Hey guys, I'm Bhanu Tukas, third year COE. You can call me or WhatsApp me for any ML doubts, I guess. Cool. So yes, so over to Dhruv and Aryaman. Hi guys, मेरा नाम ध्रुव तिवारी है. I'm an undergrad student in my second year pursuing COE. I'm also a junior council member of IOSD. So I hope that sabhi interested, all of you are interested in programming, or even if you're not, that's not a problem. We're here to explore and learn and find what we are actually interested in. So I would like to ask you some questions, and on all the questions that you have an opinion on, please show it through the raise of hands. So how many of you are interested in developmental side of programming, like web development, app development? You have seen the movie and now you want to become the next Mark Zuckerberg or something like that. Great. Sabhi बनना चाहते हैं. बढ़िया. That's the reason you're in this society, and we'll guide you to become something close to it. Great. Yeah, great. So you can lower your hands down. I'll ask you some more questions and would love some more responses from you guys. So I think my second question would be, how many of you are interested in DSA or competitive programming and want to crack in big interviews and companies? Raise your hand. Great.
I see a ton of people giving their responses by raising their hands. That's amazing. And yeah, so I can understand the situation you are in right now. I was in my first year about a year back, and same मेरे साथ भी होता था कि I was very confused. And like you guys are really daring. You joined a society where you have great seniors, great core committee who can help you and guide you to what you have to become in a shorter period of time than what you would have to do that alone. तो अगर अकेले तुम्हें लगता let's say 1 year to figure out कि अच्छा ये करना है, यहाँ we're going to provide you the resources to do it faster. So the schedule of you can guys, you can lower your hands now. So the thing is that we have prepared a very light schedule for you because we know कि बहुत pressure होगा 2 semesters continuous and that's going to be hard work. But we hope that you all enjoy this period, be relaxed, and we are your friends. You can talk to us. We have mentor-mentee groups. And now I would like to continue by just saying that future has to be changed by the present, keeping in mind the past. I would be forwarding it to Manas. Yeah, hi guys. So I'm Manas. I'm a second year COE. और स्टार्टिंग में मतलब मेरे को बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती थी. मतलब तुम लोगों को किसी को आती है? मतलब काफ़ी अच्छे वाले लोग भी हैं, होते हैं मतलब. हैंड रेज़ कर देना, कोई भी मतलब एग्री कर रहा है तो. सही है, बढ़िया. पहले से आती है तो बहुत बढ़िया बात है. जिसको नहीं आती कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सब साथ में सीखेंगे, साथ में बढ़िया चीज़ें करेंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड कर सकते. हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, you're audible. नेक्स्ट स्लाइड कर देना. या सो गाइस, बेसिकली तुम्हारा अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है कॉलेज की साइड से भी, बट उसको कंसिडर करते हुए हमने एक बढ़िया सा एक्शन प्लान बनाया तुम्हारे लिए कि इस सेमेस्टर में बेसिकली या पूरे साल में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल IUSD में इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स और इंटरैक्टिव सेशंस थ्रू आउट द ईयर चलते रहेंगे. तुम्हें किसी भी सीनियर से कुछ भी बात करनी है, रीच आउट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. फैमिली है यहाँ पे, सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बैठे हैं. ठीक है. और प्रोजेक्ट्स में अभी जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी अभी डिटेल डिस्कशन होगी. और लेट्स से तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तुम्हें कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें भी अकाउंट में लेके आ सकते हैं आराम से. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. जस्ट रीच आउट टू सीनियर्स. ठीक है. और इवेंट्स में अभी ओपन टू ऑल एक इवेंट हुआ था, कोड अननोन. पार्टिसिपेट किया था काफ़ी सारे लोगों ने. शो ऑफ हैंड्स प्लीज़. चलो बढ़िया. और इवेंट्स में अभी हमारा मेन इवेंट होगा मार्च में, हैकाथॉन होता है, तो उसके बारे में भी अभी बातें करेंगे. सो नेक्स्ट, ओपन सोर्स कोडिंग. किसी को मतलब एनी आइडिया क्या होता है ये, क्यों होता है ये, एग्जिस्ट क्यों करती हैं ऐसी चीज़ें? नाइस नाइस नाइस. संभव कुछ बताओगे क्या होता है, क्या पता है? Sure. I mean, from what I know is there are companies and or individuals they start working on a project and then they call random people from across the world who contribute to the code and all. So it's open source. I think it means like open-ended. Like there's no company or there's nothing holding it inside. So like anyone can contribute, anyone can see the source and all that and modify it. सो बेसिकली ओपन सोर्स कोडिंग में बेसिक आइडिया ये होता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है. तुम कोड देख सकते हो, तुम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है, तुम एक नए प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हो. लाइसेंसिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं वो सारी. और गिटहब इज़ बेसिकली यूटिलिटी. बेसिकली एक वेबसाइट, तुम जानते होगे अगर है तो. वहाँ पे बेसिकली उनके पास बहुत बड़ा कोड बेस है. वहाँ से बेसिकली मैनेज होता है काफ़ी सारी ओपन सोर्स रिलेटेड चीज़ें. उसके ऊपर अभी एक टॉक होगी SIG डेव वीक में, उसके बारे में भी बात करेंगे. सो वो बहुत एक्सटेंसिव चीज़ें होंगी. IUSD मेन ऑफिस से एक बंदा आएगा, कॉलेज के सीनियर्स वगैरह कोई नहीं. IUSD मेन ऑफिस से एक हेड आ रहा है, गिट के बारे में बात करेंगे तुम्हारे साथ. देन अभी कोडिंग कॉन्टेस्ट और सारे होंगे. अब जो है एक्सक्लूसिव IUSD कॉन्टेस्ट होंगे
पहले जो था ओपन फॉर ऑल था। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बेसिकली ये है, तुमने कोई चीज़ सीख ली, तुमने प्रोजेक्ट बनाया उसके ऊपर, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ यार मैंने ये चीज़ सीख ली या मैं क्या करूँगा, या बल्कि तुम प्रोजेक्ट बनाने बैठते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें और भी सीखनी है। तो उस मामले में भी हम साथ में सीखेंगे बढ़िया से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है किसी को अगर कुछ नहीं आता तो। उसके बाद जीसॉक का किसी को आइडिया है क्या होता है? नाइस नाइस, रोहन बताना जरा जो भी पता है। ओह सॉरी, मैंने किसी और को अनम्यूट कर दिया। दीप आप बता दो, आई अनम्यूटेड यू। सर बेसिकली इसमें ये होता है कि गूगल जो होती है वो कंपनीज को अपने पास लाती है कि आप हमें प्रोजेक्ट दीजिए, फिर वो कंपनीज मतलब गूगल के थ्रू, गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू गूगल इंटर्न प्रोवाइड करती है, जिसके अकॉर्डिंग जो बाकी मेंबर्स मतलब बाकी जो स्टूडेंट होते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उससे उन्हें इंटर्न का भी मौका मिलता है। काफी एक गूगल वाला स्वैग भी रहता है। बढ़िया, एग्जैक्टली यही होता है। बस इसके अंदर ये जो है ये सारी ओपन सोर्स होती है, मतलब जो भी तुम प्रोग्राम करोगे ओपन सोर्स वाली चीज़ों पे होएगा और ऐसी कंपनीज आएंगी, सब बढ़िया से काम चलेगा। तो अब कैसे करना है जीसॉक, किसी को पता ही नहीं जीसॉक क्या होता है, किसी को ये नहीं पता अप्लाई कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर एक बढ़िया सा सेमिनार होगा, सब लोग अटेंड करना बढ़िया से, सबको पता चलेगा कि होता क्या है। बेसिकली एंड रिजल्ट एंड में तुम्हारी विल है कि करना है या नहीं करना, रिसोर्सेज हम सारे प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद प्लेसमेंट के लिए आए थे तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे कि मॉक इंटरव्यूज होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट प्लेसमेंट के लिए ही आई गेस सारे NSIT आई हो, तो प्लेसमेंट बढ़िया होती है। बेसिकली 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं प्लेसमेंट के लिए। सबसे पहले ब्रांच अब तो आ गए हो, चेंज वेंज नहीं कर सकते, दैट्स फाइन। CGPA काम करना और 8 अबव रखो, सब बढ़िया है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 8 अबव आ जाती है। सो देन नेक्स्ट 2 थिंग्स आर DSA एंड प्रोजेक्ट्स। सो DSA में क्या है, IOSD का बेसिक पार्ट जो आएगा वो DSA और प्रोजेक्ट्स में आएगा, क्योंकि DSA जो है तुम्हारा दैट इज फर्स्ट राउंड या उसके लिए, तो उसके बारे में अभी पूरा बात करेंगे। एंड प्रोजेक्ट्स जो है तुम CV में डालते हो सच दैट तुम्हारा मतलब तुम CV अगर तुमने किसी को दिखाया तो ये नहीं लग रहा कि यहाँ खाली खाली पड़ा हुआ है। तो प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे, सब बढ़िया से चलेगा। मॉक इंटरव्यूज होंगे, मतलब अभी तो नहीं होंगे, अभी क्या ही करोगे मॉक इंटरव्यूज का, बट जब स्टार्ट होंगी चीज़ें तो मॉक इंटरव्यूज, ऐसी रेज्यूमे बिल्डिंग सेशंस भी होंगे। सेकंड ईयर्स तो अटेंड करेंगे ही, फर्स्ट ईयर्स वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, तुम्हारी विल है। देन DSA प्रैक्टिस सेशंस भी चलेंगे। बढ़िया, नेक्स्ट। Hello guys. I'll be telling you about the event calendar. मानस ने जैसे बोला पूरे सेमेस्टर पूरे ईयर कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहेंगे और इवेंट कैलेंडर हम लोगों ने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि सबको पता है कि सबके टेस्ट होते हैं और सबके अपने अपने कुछ और भी काम होते हैं। आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे, यू मस्ट बी लर्निंग समथिंग न्यू, तो इतना कोई हेक्टिक नहीं होने वाला है, तो कुछ डरने की बात नहीं है। तो अगर मैं फटाफट एक बार रन थ्रू कर दूं इवेंट कैलेंडर के को, तो वील बी स्टार्टिंग विद आवर डेव वीक फ्रॉम जनवरी 18th। एक सबसे पहले गिटहब पे एक क्लास होगी जो कैंपस एम्बेसडर आने वाले हैं गिटहब DTU से। तो उसके बाद हम लोग एक technology preference form release करेंगे on January 24th. Basically, you guys will have to choose 2 technologies that interests you. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चूज कर लिया तो कुछ और नहीं कर सकते, या फिर ऐसा है कि बस अब तो यही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टू मेक द प्रोसेस होल लॉट इजियर, हम लोग को पता होगा कि कौन वेब डी परस्यू करना चाहता है, कौन ऐप डी परस्यू करना चाहता है, तो वी विल बी अलॉटिंग यू मेंटर्स और तुम लोग के लिए भी इजी हो जाएगा। एक ग्रुप में होगे सेम स्किल सेट के या फिर सेम इंटरेस्ट के लोग होंगे तुम लोग के साथ।
February में we'll be having a workshop. Now this workshop is going to be very flexible in terms of the topic we are going to discuss in it. किसी को भी कोई प्रोजेक्ट आइडिया है या फिर कोई चाहता है कि एक डाउट सेशन हो जाए, कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है और डिस्कस करना चाहते हो तो टेल अस, वी विल बी हैविंग दोस काइंड ऑफ डिस्कशन इन द वर्कशॉप्स. नाउ बाय द एंड ऑफ February वी विल बी हैविंग अ कोडिंग कॉन्टेस्ट. तब तक तुम लोगों को जहां तक है एरेज ऑन लिंक लिस्ट वगैरह आ जाएगा, तो बेसिक सा एक कोडिंग कॉन्टेस्ट होगा. अभी तुम सबने कोड अननोन मोस्ट प्रॉब्ली दिया ही होगा सबने, नहीं भी दिया तो सुना तो होगा ही कि क्या हुआ था उसमें, कैसे था, क्या प्रोसेस था. आई थिंक कोड अननोन जिन्होंने दिया था वो है यहाँ पे, और जो विनर है वो भी है शायद यहाँ पे, मैंने चैट में देखा था अभी. तो वी विल बी हैविंग मोर कॉन्टेस्ट लाइक दीज थ्रू आउट द ईयर. उसके बाद अर्ली मार्च में GSOC SIG होगा. नाउ किस किस को पता है कि GSOC क्या होता है? अभी भी सब बोल रहे थे जब मानस ने पूछा था. हैंड रेज करोगे जो है जिन्हें पता है कि GSOC क्या है? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है कुछ लोग हैं. तो हाँ, GSOC की SIG होगी अर्ली मार्च में. काफी कुछ पता चल जाएगा उसमें कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है. उसके बाद मिड मार्च में एक वी विल बी हैविंग NSUT's लार्जेस्ट हैकाथॉन. काफी लोगों ने बता दिया इसके बारे में अभी, और भी आगे भी बात होगी. और अगेन मार्च एंड में एक वर्कशॉप होगी सिमिलरली. मतलब कोई भी तुम लोग को लग रहा है कोई, तब तक तो काफी स्किल्स मतलब स्किल सेट कुछ ना कुछ तो होगा ही सबके पास. तो तुम लोग चाहते हो कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया है, टीम बनानी है कि मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास टीममेट्स नहीं है, मेरे को नहीं पता कि किसके साथ मैं कोलैबोरेट करूं. टेल अस, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट ओवर देयर. Similarly, another workshop in early April, and mid-April में we'll be having another contest, which would be based on stacks, queues and trees. तब तक हो सकता है ट्रीज वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट्स अगर ना भी आते तो कोई टेंशन की बात नहीं है, स्टैक्स यूज कर लो. और मतलब इतना कुछ ये नहीं है कि नहीं आता तो अब मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके सब चलता रहेगा. Now mid May we'll be having a resume building session. This would be mainly focused for the second years because तुम लोग तो अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर से होगा तुम लोग का, तो दिस वुड बी फोकस्ड ऑन सेकेंड ईयर्स. एंड लेट में अगेन कोडिंग कॉन्टेस्ट होंगे, एंड दिस वुड बी फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स. बट हाँ, क्योंकि मॉक इंटरव्यू कोडिंग कॉन्टेस्ट है तो सेकेंड ईयर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे हम. नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू द डेव वीक. Dev week will be starting from 18th of January. So entire week we will be conducting SIGs. सबको पता है ना SIGs में क्या होता है? एक बार हैंड रेस करोगे सब जिसको पता है. ओके है कुछ लोग, ठीक है. एक आवाज आ रही है ना अभी भी मेरी? कोई प्रेजेंटर में से बता दो. Yes, Abhishek. Yes. हाँ ठीक है. तो डेव वीक में we'll be conducting SIGs. टेक्नोलॉजी होंगी, वेब डेव, एंड्रॉइड डेव, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे होगा. और सीनियर्स भी लेंगे, कुछ बाहर से भी लोग आएंगे तो जो ऑलरेडी प्लेस हैं टेक जाइंट्स में. तो तुम लोग को मजा ही आने वाला है उसमें. जो भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो. 1-on-1 सेशन होगा, मीट होगी प्रॉपर. और उसके बाद ऐसे ही एक जब ये वीक खत्म हो जाएगा डेव वीक. Sorry to interrupt, Abhishek. Just let them know कि SIGs क्या होते हैं. Like some of them don't know. They are writing in the chat. अच्छा, सो बेसिकली SIGs एक इंटरैक्टिव सेशन होगा तुम लोग का, जिसमें जो भी ऑलरेडी हमारे सीनियर्स हैं जो प्लेस्ड हैं टेक जाइंट्स में, दे विल बी टेलिंग यू अबाउट, फॉर एग्जांपल समवन इज a master in Android development. That person is placed in Google और Android development कर रहे हैं. उस फील्ड में उन्हें बहुत हेलो. Yes, Abhishek, you're audible. हाँ, तो उस फील्ड में उन लोगों को उन्हें बहुत इंटरेस्ट है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं. They will be telling you about how to proceed with, for example, if we are talking about Android development in an SIG, they will be telling you about how to proceed with it. क्योंकि तुम कॉलेज में आते हो, तुम्हें आइडिया नहीं होता कि
हम लोग भी आए थे, हमें भी नहीं पता था। सब स्टार्टिंग में आके लगता है कि ये कर लें, वो कर लें, कैसे शुरू करें, इतना सब कुछ कैसे होगा, एक साथ पढ़ाई भी करनी है, कॉलेज भी देखना है, CGPA भी मेंटेन करनी है, और फिर लगता है कि DSA भी कर लें, वेब डेवलपमेंट भी कर लें। तो एक तरीके से तुम्हें वो एक राइट पाथ बता देंगे कि ऐसे करो, तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हारा दूर होगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, तुम्हें बेसिक टूल्स मिल जाएंगे। वो सब SIG अटेंड करो, मेरे हिसाब से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है SIGs अटेंड करने से। तो आई थिंक काफी आइडिया हो गया होगा कि SIG क्या होती है। और ये सब SIGs के बाद वी विल बी रिलीजिंग द टेक्नोलॉजी प्रेफरेंस फॉर्म, जैसे मैंने भी इवेंट कैलेंडर में बताया था। तो उसके बाद तुम लोग दो अपनी कोई जो भी टेक्नोलॉजी तुम्हें इंटरेस्ट करती है, तुम्हें लग रहा है कि मेरे को अभी वेब डेवलपमेंट सीखने का मन कर रहा है, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं वेबसाइट्स बनाऊं, या मैं चाहता हूँ कि एप्स बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, या मैं चाहता हूँ कि गेम डेवलपमेंट की फील्ड में जाऊं, तो यू कैन चूज आइदर ऑफ दोज। एंड उसके बाद वील बी अलॉटिंग यू मेंटर्स, और दैट्स हाउ वील प्रोसीड। नेक्स्ट प्लीज। हेलो एवरीवन, आई एम नितिन सोलंकी फ्रॉम COE सेकंड ईयर। तो यार तुम सबने अभी तक हर जगह सुन लिया होगा कि यार DSA करो, DSA करो। अमन हत्यावाल की भी वीडियोस में सुन के बोर हो चुके होंगे। तो यार सबसे पहले तो कोई मुझे ये बताओ, DSA होता क्या है? कौन बताएगा? एनीवन? DSA एक stands मिनट, for Data Structures and Algorithms. उसके अलावा और कुछ फुल फॉर्म के अलावा? और वो वेजेक्स कहाँ पे भाई, वो तो बताओ। हाँ आ गया, बता भाई, माइक खोल लो मतलब अपना, जिस चीज को अलाउ किया हुआ है। हेलो। हाँ बता भाई। ये बंदा वैसे बता देता हूँ कि ये वो था, कोड अननोन का विनर था, फर्स्ट प्राइज इसी को मिला है। DSA is basically like data structures, like जैसे जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग वेज होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स आर लाइक मेथड्स टू स्टोर द डेटा वी आर टेकिंग एज इनपुट और वॉट एवर। एंड एल्गोरिदम इज लाइक जो प्रोसीजर या जो टेक्निक्स होती है उन पे ऑपरेशंस करने के लिए, तो उनको एल्गोरिदम्स कहते हैं। बिल्कुल सही है, परफेक्ट बोला है। बाकी एक बार मैं बता देता हूँ कि यार जैसे जब भी तुम कभी भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो, जो सबसे पहली चीज तुम कहते हो वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स सीखना। फॉर एग्जांपल तुमने C++ उठाई होगी मोस्ट प्रोबेबली सबने। अगर किसी ने अभी तक नहीं उठाई है तो मैं यही कमांड करूंगा कि C++ उठा लो। फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट सेमेस्टर में खत्म हो जानी चाहिए विद थोड़ा बहुत बेसिक DSL को तुम्हारी। अब यार तुमने सिंटैक्स सीख लिया, सिंटैक्स में तुम्हारा बेसिक आ जाता है एरे, स्ट्रिंग्स, डाटा टाइप्स, फॉर लूप, ये सब। उसके बाद यार तुम जो सिंटैक्स होता है ना उससे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के। फॉर एग्जांपल मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कि यार a की पावर n निकालो। तुम क्या करोगे? नॉर्मली a को a से n बाय मल्टीप्लाई कर दोगे एक फॉर लूप चला के। ये तुम नॉर्मल अपना लैंग्वेज सीख के कर पाओगे, बट ये कोई बहुत बढ़िया सोल्यूशन नहीं है। तुम इससे बेहतर सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे अगर तुम कभी भी क्या नाम है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, या फिर तुम इंटरव्यू में एक बढ़िया परफॉर्मेंस देना चाहते हो, या फिर क्रैक करना चाहते हो अपने कोडिंग राउंड्स को। तो उसी के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। अब डाटा स्ट्रक्चर्स में जो तुम्हारी बेसिक चीजें आती है वो सबसे पहले होती है स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, क्यू, ट्रीज और ग्राफ, ये सारी चीजें होती है। एल्गोरिथम्स में तुम्हारे कुछ बेसिक तो तुम्हारे कुछ तो फिक्स्ड एल्गोरिथम्स होते हैं जो तुम्हें आने ही आने चाहिए। उसके अलावा बाकी तुम अपने खुद के एल्गोरिथम्स बनाना सीखते हो जिससे कि तुम अपने क्वेश्चंस का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन निकाल सको। ये होता है तुम्हारा DSA। अब बात आती है यार कि DSA क्यों करना है, तो बताओ भाई क्यों करना है, तुम ही बताओ। आवाज आई है किसी को? हाँ हेलो आ रही है, आ रही अरे है। भाई तो बताओ, Yes. तुम ही समय से कोई बताओ बंदा कि यार DSA क्यों करना चाहिए हमें। हैंड तो यूज कर दो भाई। हैंड्स रेज हो गए, उनमें से एक से अनम्यूट क्योंकि करके पूछ। इसको किया हुआ है मैंने अनम्यूट, और इसको भी किया हुआ है, जैन भाई जो भी है ये। Basically, to make the solving of problems more simpler and easier. एक सही एक बात है। इफेक्टिव वे होना चाहिए ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वो हाँ उसी के सही लिए होगा। बात है।
बिल्कुल सही है कि यार सॉल्यूशन को इफेक्टिव तरीके से सोल्व करना। जैसे ना अभी तुम में से ज्यादा बच्चों ने कोई कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं दी होगी, जब अगर तुम देना चालू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा यार कि तुम ना क्वेश्चंस तो सोल्व कर पा रहे हो, बट तुम्हें टाइम लिमिट एक्सीड मिलेगा हमेशा। जनरली मतलब मिलता ही मिलता है तुम्हें। स्टार्टिंग में जब मैंने भी अपनी कोडिंग वगैरह स्टार्ट की थी, मैं कुछ कॉलेजेस में गया टेक फेस्ट के अंदर देने चालू किए, मेरे साथ बहुत जनरली ये होता था कि मान लो 5 क्वेश्चन है, 3 सोल्व किए, बट उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर सीधा आता था टाइम लिमिट एक्सीड। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया बट छोटे टेस्ट किसके लिए चलता था। इसी चीज को ठीक करने के लिए तुम्हें डीएसए सीखना पड़ता है, और बाकी जो तुम्हारे एल्गोरिथम्स होते हैं। बाकी जब तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो ये चीजें और ज्यादा बढ़िया हो जाती है तुम्हारी। इसके अलावा जो तुम्हारे डीएसए सीखने का मेन पर्पस होता है वो होता है तुम्हारे कोई भी इंटर्नशिप या फिर क्या नाम है तुम्हारा प्लेसमेंट के लिए जो तुम्हारा पहला राउंड होता है वो जो तुम्हारा प्रोसेस होता है। वैसे बता देता हूँ प्लेसमेंट का प्रोसेस तुम्हारा क्या होता है। सबसे पहले तो एक शॉर्टलिस्ट हो जाता है, मतलब कोई भी कंपनी आके बोल देते हैं कि भाई 7 सीजीपीए से ऊपर वाले बच्चे अप्लाई कर दो, तुम सब अप्लाई कर देते हो। उसके बाद जो पहली चीज होती है तुम्हारी वो होता है तुम्हारा डीएसए राउंड। तुम्हें एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दिया होगा, उसमें तुम्हें सोल्व करना है। अब मान लो तुमसे वो सोल्व नहीं हुआ तो तुम सीधा डायरेक्टली बाहर हो गए, तुम्हें इंटरव्यू तक जाने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि यार डीएसए स्किल्स है तुम्हारी। इसके अलावा जब तुम इंटरव्यू में पहुंच भी जाते हो वहां पे भी वो तुमसे डीएसए रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, जो मेनली डीएसए रिलेटेड ही पूछते हैं। उसके अलावा तुमसे प्रोजेक्ट्स भी पूछ लेते हैं और कुछ बेसिक चीजें पूछ लेते हैं, तुम्हारा डीबीएमएस ओएस ये सब। इसलिए मैं सबको ये कहूंगा कि यार अभी के लिए एटलीस्ट एक लैंग्वेज पकड़ो और उसी के अंदर डीएसए करना चालू कर दो। और ये तुम्हें ऐसे नहीं है कि यार फर्स्ट सेमेस्टर में करके खत्म हो गया, ये तुम्हारा सेकंड ईयर तक चलता है ना। एटलीस्ट 2 साल तो बंदे चलाते रहते हैं डीएसए को साथ ही साथ लेके। बाकी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद तुम अपना अपना एक एक डेवलपमेंट भी उठा सकते हो। अब बात करते हैं कि एज अ सोसाइटी हम तुम्हें कैसे हेल्प करने वाले हैं डीएसए स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। तो अभी तुम्हें साइड में टाइम टेबल सा दिख रहा होगा कि हमने हर एक वीक सेट किया, और हर एक वीक में हम एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें 7 क्वेश्चन देंगे। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम होगा, जो कि मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में तुम 7 क्वेश्चन कर सकते हो, या एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हो करने की। 1 हफ्ते तक ढंग से कोशिश करो, मंडे को तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, संडे तक का तुम्हारे पास टाइम होगा। और फिर संडे की इवनिंग को हम सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करेंगे गूगल मीट के थ्रू, और तुम्हें सोल्यूशन देगा कि यार ये चीज इस तरीके से हो सकती है, या फिर किसी चीज के एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, तो वो सबके सब बताएंगे और तुम्हारी भी सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, या फिर तुम्हें जो दिक्कत आई वो सब कुछ। इससे तुम्हारी स्किल्स काफी इंप्रूव हो जानी चाहिए। और ये हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है, और ये मत सोचना कि यार ये प्लान बिल्कुल फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। जैसे इसके अकॉर्डिंग तो तुम्हारा मार्च के एंड में खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ज्यादा भी चलेगा। और इसके बाद हम जैसे ही मार्च के एंड में के बाद जब अप्लाई चालू होगा तब हम मिक्स्ड क्वेश्चन देना चालू कर देंगे तुम्हें। इसके अलावा हम कुछ कॉन्टेस्ट भी करेंगे, जैसा कि तुमने देखा भी होगा हमारे जो भी तुम्हारा था टाइम टेबल सा दिया सामने तुम्हें। 2 कॉन्टेस्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए होंगे, और उनमें कैश प्राइजेस भी होंगे। और मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया मोटिवेशन यही होता है कैश प्राइज का। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था मैंने वही थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव वगैरह चालू की थी। कुछ कॉलेजेस के टेक फेस्ट में गया, जैसे मैं पहले टेक फेस्ट में गया था, आईबी मेन कैंपस था, वहां पे मैं जीत गया था, सीधा कैश प्राइज मिल गया था मुझे। उसके बाद से मेरा भी अलग ही जोश चढ़ गया था क्या अब तो बिल्कुल फोड़ के रख देना डीएसए वगैरह में। तो उम्मीद है तुम्हारे साथ भी यही होगा। उसके बाद एक जगह पे वो जीता था मैं, वहां पे भी कैश प्राइज मिला था। और तुम्हें यहाँ पे जो 2 होने वाला है ना कॉन्टेस्ट, वो तुम्हारे आईयूएफडी ओनली होंगे, और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होंगे। उसके अलावा तुम्हारा एक कॉन्टेस्ट होगा जो फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के लिए होगा। तो उम्मीद है तुम फुली मोटिवेटेड रहोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट कर दो भाई। हाँ, मेंटर मेंटी ग्रुप्स। यार अभी तक तुम सबके सब ऑलमोस्ट सबके सब 1-2 को छोड़ के मेरे ख्याल से एक ग्रुप का पार्ट बन चुके होगे, जिसमें तुम्हारे 2 सेकंड ईयर स्टूडेंट्स होंगे, एक तुम्हारा थर्ड ईयर होगा, और बाकी 10 तुम जूनियर मेंबर्स होगे। तो यार सबसे पहले तो यार इसका लॉजिक क्या था, हमने ये ग्रुप्स बनाए क्यों थे। जब हमारा फर्स्ट ईयर चला गया था तब ऐसा कोई लॉजिक, तब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, बस एक ही ग्रुप होता था। और इसमें हमने नोटिस किया कि इंटरेक्शन बहुत कम हो रही थी, ना के बराबर इंटरेक्शन थी। थोड़ा टाइम बच्चे बात करते थे, उसके बाद वो ग्रुप साइलेंट हो जाता था। उसी चीज को रोकने के लिए अब की बार हमने बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं। इन ग्रुप्स में यार तुम कोई भी चीजें पूछा करो, अपनी जनरल डाउट्स कोई भी हो, जो नहीं क्या डीएसए से रिलेटेड पूछना है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछना है, या डेवलपमेंट से रिलेटेड ना पेपर की बात करनी है। पेपर में वैसे 2-4 चीजें बोलने से तक मीट रिकॉर्ड हो रही है, चलो पूरा का पूरा फुल अपना रखो, क्या कहते हैं इंटरेक्शन वगैरह बनाए रखो, हमारे साथ रखो और अपने जो बाकी दोस्त वगैरह ग्रुप के अंदर उनके साथ। अब इसमें हम क्या कहने वाले हैं, क्या तुम्हें कोई भी चीज में डाउट हो तो हमें आके बोलो। तुम्हारा अगर मान लो मेंटी ग्रुप में बिल्कुल डेड हो गया, तो मेन ग्रुप पे बोलो यार कि मेरा ग्रुप जो है डेड हो चुका है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाए उसका। तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत आती है बता दो हमें। इसके अलावा इन ग्रुप्स में हम क्या कहने वाले, बीच बीच में ना कुछ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होंगे तुम्हारे,
कि यार एक ग्रुप वर्सेस बाकी सारे ग्रुप्स, मतलब वो होंगे तुम्हारे डीएसए रिलेटेड राउंड्स ही होंगे ये कोडिंग के, ताकि तुम और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओ और तुम्हें आपस में अपनी अपनी स्टैंडिंग्स भी पता चल जाए और तुम्हें पता चल जाएगा तुम कहाँ गलती करते हो। ये मोटिवेशन का सबसे बढ़िया इफेक्ट आ जाता है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट। Hi guys, am I audible? यस। Yeah. So hi, I'm Prachi. I'm from second year EC branch. तो यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि हैकाथॉन क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? किसी को पता है? हाँ, एक तो इवेंट अनम्यूट। होता है एक हाँ, इवेंट बोलो होता बोलो। है जहाँ पे एक इवेंट होता है जहाँ पे एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसका एक इफेक्टिव सोल्यूशन निकाला जाता है और उसको बस वही। Yeah, exactly. So basically hackathons help you to put your coding skills to work. ठीक है, हैकाथॉन में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स वर्क टुगेदर ऑन अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो इतना समझ आ गया? वो किसी भी हो सकता है, तो एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजर। ठीक है, और हैकाथॉन्स के बहुत बेनिफिट्स होते हैं यार। फॉर एग्जाम्पल, हैकाथॉन में यू विल यूजुअली मीट द पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड स्किल्स। तो उससे तुम्हारा क्या होगा? एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बन जाएगा नेटवर्किंग के लिए। Secondly, innovative ideas. You guys will think and apply your skills in order to create something new. तो इससे इस चीज में बहुत हेल्प होती है। ठीक है, तो IOSD में क्या होता है? IOSD organizes one of the largest hackathons in the North India, and IOSD NSUT is planning to organize a similar hackathon, which will be held in the mid of March 2021. तो इस हैकाथॉन में क्या होगा कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया विल पार्टिसिपेट। अब इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन है तो विनर्स विल गेट एक्साइटिंग कैश प्राइजेस इवन इन लैक्स। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सीन कि हैकाथॉन्स में तुम पार्ट लेने का क्या होता है। सेकेंडली देखो, हैकाथॉन्स में पार्ट लेने के मौके तो तुम्हें वैसे भी मिलेंगे, कहीं बाहर से भी मिल जाएंगे, लेकिन here at IOSD you will get a chance to be a part of the organizing team too. मेरे हिसाब से सॉफ्ट स्किल्स भी देखो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी टेक्निकल स्किल्स है। ठीक है, क्योंकि तुम ऑब्वियसली इंटरव्यू में सिर्फ अपनी वो नहीं कर सकते कि ये टेक्निकल स्किल्स है, तुम्हें उसे प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। एक आगे इंडस्ट्री में काम करोगे तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हेन यू वर्क इन अ टीम विद सीनियर्स, तुम्हें गाइडेंस तो ऑब्वियसली मिलेगी, प्लस तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। तो हमें पार्ट तो लेना ही है, लेकिन मैं तुम्हें मतलब सजेस्ट करूंगी कि ऑर्गेनाइजिंग टीम में भी पार्ट लेना। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। किसी को कोई डाउट है क्या? राइट, सो किसी को अभी तक कोई डाउट्स हैं क्या? पूछ लो अभी, वी कैन क्लियर इट राइट नाउ। अच्छा, जो हैंड रेज कर रहे हैं उनको डाउट्स है अभी? ओके, ठीक है, तो फिर सो गाइस, सब लोग इंजीनियर्स है, ठीक है, सब लोग को प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। तो फिर वहां पे व्हाट दे आस्क फॉर इज योर सीवी, योर रेज्यूमे, ठीक है, कि व्हाट ऑल हैव यू डन। तो उसके लिए यू कैन मेंशन योर कोर्सेज दैट यू हैव टेकन, कोई अगर कोई स्किल्स पिकअप कर रही है तो फिर यू मेंशन दैट इन योर सीवी। But the most important thing in the CV is the projects that you've done. Projects add value to your CV. So if you've done a very good project that has impacted a lot of people, and it just shows that you have value, you have applied those skills that you have, और उसको कोई tangible result दिया है, तो फिर projects are for that. Okay, it also shows that you're self-sustainable and you've collaborated with people and done something worthwhile. ठीक है, उसके लिए what we do is IOSD will help you to do some projects collectively. तो फिर अभी हम बताएंगे कि what all current projects we have right now. उसके okay, so अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो होंगे फॉर दिस आफ्टर दिस सेमेस्टर, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी फॉर द प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स दैट विल टेक IOSD will take. Okay, उसके लिए if you have any ideas, you're more than welcome to share them on the groups. तो फिर if you have any idea कि
इस प्रोजेक्ट मुझे ये करना है, ये आइडिया है मेरे पास, तो फिर विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन और फिर विल डू इट, ठीक है। सो फिर अभी विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट ऑल प्रोजेक्ट्स वी हैव राइट नाउ। अभी शॉर्ट लिस्टिंग तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होगा, बट इफ एनीवन हियर इज वेरी मच इंटरेस्टेड और उसके पास वो स्किल सेट है कि थोड़ी कोडिंग में वो बहुत अच्छा है, तो फिर यू कैन टॉक टू अस सेपरेटली कि अगर करंट प्रोजेक्ट्स में यू हैव एन इंटरेस्ट, तो फिर वी कैन ऐड यू इफ यू if you have the prerequisite knowledge. Otherwise this is not part of the process. सबके लिए टाइम आएगा इस सेमेस्टर के बाद, you can explore and just see what your strengths are, और फिर उसके accordingly you can see what all projects interest you. So अभी we'll just explain what current projects IOSD is doing, all for second years and third years. Hi guys, I'm Kapil, second year IT student. So as Ariman told you that here we focus on project-based learning. So let me introduce you to the Neskai blogs. So have any of you ever used blogging platform, a Medium, Blogger, or any platform? Just raise your hands, or if you wish, just type in the chat which one you like the most. Okay. Okay. So basically what we thought is blogging platforms सब use करते हैं, right? But what if I want to know how was the placement scenes in my particular college? और कैसे मेरे सीनियर्स ने हमारे कॉलेज में जो दिक्कतें आती है उन्हें सॉल्व किया। मतलब अपने कॉलेज की थोड़ा बहुत सीन्स का सबको आइडिया लग ही गया होगा भी। हाँ, so the point is I don't have any particular platform where I can see all this stuff which are directly related to me. Basically जिन चीजों से मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है, right? So बस यही सोच के we started with Neskai, a blogging platform which is exclusively for NSUT people. At least that's what we have planned till now. But if you guys wish, we will be more than happy to get you guys on this project and make it bigger. And yes, the thing why we named it Neskai, because we have Neskai lawns in our college to which every NSUTian relates to the most. Of course, you guys can't right now, but yeah, when the college reopens, it is where you will be chilling the most during breaks. Also, this is not just another web development project. We have a ML team working on this for the best results. And this is that project which every NSUTian will be using in near future. And I hope in the next induction, your juniors will type out Neskai in the chat instead of Medium or anything. So yeah, over to Rhythm now. Next slide. Okay, cool. Hi guys, I'm Rhythm. I'm in COE and I'm in second year. So today I'm going to talk about the NSUT Daily App project. So आप में से कितने लोगों ने अब तक IMS से यूज किया ही होगा, I guess? अगर किया ही होगा तो चैट में रिस्पॉन्स कीजिए। और मतलब IMS हमने यूज किस लिए किया है? बेसिकली फॉर अटेंडेंस, नोटिस चेक करने के लिए और रजिस्ट्रेशन अभी लेटेस्ट। तो और किसी ने फोन पे भी यूज किया ही होगा। फोन पे जनरली हम फोन पे अटेंडेंस सब चेक करते हैं, तो वहां पे कंफर्टेबल भी नहीं फॉर श्योर। तो बेसिकली इस ऐप का वही रोल है कि जितनी भी आपकी इन्फो है आपके अटेंडेंस, और ये भी बताएगा कि जैसे कि आपकी अमाउंट ऑफ क्लासेस कितनी आपको और अटेंड करनी है ताकि आप बेसिक अटेंडेंस लिमिट से ऊपर है, नोटिस, टाइम टेबल, रिजल्ट, ये सब कुछ एक ही ऐप में होगा, बस वन क्लिक अवे। और एडिशनल फीचर्स में ये भी होगा कि आपको अपने टास्क शेड्यूल करना है वो आप शेड्यूल कर सकते हो, आपको नोटिफाई किया जाएगा उसके रिगार्डिंग। एंड अनदर बेनिफिट इज जनरली सिलेबस जो होता है टीचर्स नहीं देते या लेट देते हैं। अभी सेम 1 आई गेस टीचर्स दे रहे हैं, हमें अक्सर लेट ही मिलता है। तो एक तरीके से हमने कलेक्ट कर रखा है क्योंकि हमारा नेटवर्क काफी ज्यादा है, तो हम सबसे सारी ब्रांचेस के सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस हमने एक साथ कलेक्ट कर रखे हैं और जस्ट वन क्लिक अवे होंगे उस ऐप में। कोई सा भी सिलेबस देखना है आपको उसी टाइम दिख जाएगा। तो ये तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि ये ऐप आप डेली यूज कर रहे होगे। और हाँ, और कूल। और बेसिकली वी विल बी लॉन्चिंग दिस ऐप, वी विल ट्राई टू लॉन्च दिस ऐप इन दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ में हो जाएगा। एंड बेसिकली वी आर ईगरली वेटिंग फॉर अ वंडरफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। कूल। नेक्स्ट स्लाइड। Hi guys, I'm Samarth, second year from ICE. When I came to IOSD, जब Execom की starting की meet हुई थी हमारी, we were asked about our projects कि किसने किस पे पहले काम किया है या किसको कितना experience है किस चीज का. So Utkarsh and I, Utkarsh is another second year from IOSD from ECE. We worked on a project for mental health. We were very passionate about that subject and we worked on it, but साइट बन गई थी, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, वी वन दैट, बट प्रॉब्लम ये थी कि ट्रैक्शन नहीं आ रही थी। जो हमने सोचा था इट विल गेट एन इम्पैक्ट, वो नहीं आ रहा था।
क्योंकि यूजर बेस इतना नहीं था, हमारा खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट था। तो व्हेन आई शेयर्ड द प्रोजेक्ट IOSD, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इट गेन ट्रैक्शन। एंड नॉट ओनली दैट, मुझे सात्विक सर IOSD के प्रेसिडेंट है, उनका कॉल आया कि देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मेंटल हेल्थ रिलेटेड ही। एक NGO है, राहत NGO, which connects students in need of mental healthcare to healthcare professionals and psychologists who have years of experience. And if you go to them normally by booking an appointment, they charge a lot. But यहाँ पे with Rahat NGO, they were ready to give those services almost free of cost. So we developed an interface between that team of doctors and the students in need of mental health care. And this project Rahat, it basically connected them. And not only that, it provided mental health resources to students who were in need of those. And yeah, this was a topic we were not only passionate about, but हमारे CV में भी लिखने के लिए हमारे पास है कि we interned in this NGO, और बाहर आप अप्लाई करोगे पोस्ट ग्रेड के लिए कहीं पे, you know कि these social work sort of internships hold value. और ये मेरे को, आई डिडंट सीक आउट फॉर दोस, मैं बहुत टाइम से आई वाज सीकिंग आउट फॉर इंटर्नशिप्स। अब आ गया है वेब डेवलपमेंट, हाउ डू आई बिल्ड माय CV, आई वाज सीकिंग आउट फॉर लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, नहीं मिल रही थी। यहाँ पे IOSD came to me and gave me the internship. So that's the level of receptiveness and helpfulness that seniors in IOSD have. I just shared a project for the sharing sake, and they connected me to people who can help me build my CV and skills further. So yeah, this is, सीखने को तो बहुत मिलता ही है, बट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिलती है IOSD में. Yeah, that's all I'd like to say. So next slide, please. So everyone, myself Ayush Singh. And I am Sahil Chawla. And we are both second year computer engineering students, and we are working on this project called Machine No Learning. So in this, basically, we are trying to create an app where a user can experiment with various different machine learning techniques and learn about these different types of models. So it is basically going to be an educational app where a user can visualize and understand different types of models used in machine learning. For a small sneak peek, we have shown the neural network and the KNN page as screenshots. We are planning to move on with a dynamic theme and plan to expand the app. चलो ये तो फॉर्मल इंट्रो हो गई ऐप की। अब ये बताओ कि MLAI तो सबने सुना ही होगा ना, एक बार रेज हैंड्स करके बता दो। चलो, MLAI बेसिकली इट इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ये अब आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। आगे आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज हो रही है। तो अब हम दोनों को ये फील्ड सीखने का मौका मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। हाँ, तो गाइस जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना, तब हम लोगों को तो मतलब ML तो बहुत ही नए थे। ML में हमें सिर्फ ऐप डेवलपमेंट ही की थी। बट अब जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं ना, तो हमें ML के बारे में चीजें पता चल रही हैं, तो मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है ML की फील्ड में। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया था टू लर्न दिस न्यू फील्ड, और ऐसे सीनियर्स के साथ जिन्होंने अच्छे से ML ऑलरेडी कर रखी है। हाँ, तो इससे तो मैं यही मैसेज कन्वे करूंगा कि प्रोजेक्ट्स करने भी काफ़ी ज़रूरी हैं, एंड गाइस अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए बनानी पड़ती हैं। दिस कैन बी डन इफ़ यू कीप द इंटरेक्शन लाइव, एंड IOSD तुम्हें उस इंटरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ वाले एरिया में अच्छे से गाइड करेगा। सो ट्राई टू फुली यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट। थैंक यू।